students, how are you? Are you fine? Sounds good. So today we are going to do chapter number 17 of English grammar, and the name of chapter is tense, simple present and simple past. It means we are going to do simple present and simple past tense in this chapter, and we are going to discuss the rules of this chapter, this sentences, simple present and simple past. First is simple present tense tells us whether an action happens regularly or talks about people in जनरल, कि कोई एक्शन रेगुलरली होता है या फिर जनरल लोगों के बारे में बात होती है, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट के लिए एग्जांपल है, ही कम्स टू स्कूल बाय बस. ही कम्स टू स्कूल बाय बस. So in the previous chapter we have discussed also कि हम as या es कहाँ यूज करते हैं और as या es कहाँ यूज नहीं करते हैं. I am again repeating it. When we are talking about the subject, the pronoun is he, she, it. और अगर subject इसका होगा singular होगा like boy and name of one person, then we use the verb with s or es. ओके और अगर हमारे पास होगा सब्जेक्ट में हमारे पास आई, वी, यू, दे प्रोनाउन हो, या फिर हमारा जो नाउन हो वो प्लूरल फॉर्म में हो लाइक चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स और नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन लाइक नमन, नेहा, नमन, नेहा एंड गीतिका. तो इस तरह से अगर हमारे पास नेम्स हो ऐसे तो हम क्या यूज करेंगे, द वर्ब विदाउट एस और ईएस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल ऑफ सिंपल पास्ट. Simple past tells us about actions that happened in the past. जो actions past में हो चुके हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे that will show the tense in past. For example, I walked to school yesterday. अब हम इन दोनों एग्जांपल्स को रिलेट करते हैं. Let's check them. He comes to school by bus. It means कि रेगुलर आता है वो बस पे. Like खुद का भी आप एग्जांपल ले लो. This year you are not going to school, but in the previous year you were going to school. है ना, आप रेगुलर जाते थे बस से. तो इसमें he comes to school by bus. रेगुलर एक्शन हो रहा है. नेक्स्ट, I walked to school yesterday. कल गया था बट आज नहीं गया, तो इसमें डिफरेंस आ गया, चेंज आ गया, रेगुलर नहीं हो रहा वो. तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट हो गया. ओके अभी जैसे हम कर रहे हैं कि आज हम चैप्टर 17 कर रहे हैं, आई रीड चैप्टर 17, और कल आप अगर यही इसको बोल दोगे आई रेड चैप्टर 17 यस्टरडे, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द एक्शन इज हैपनिंग रेगुलरली और वी टॉक अबाउट द पीपल इन जनरल, तो हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. एंड डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम एस या एस यूज करेंगे या नहीं करेंगे. We have done this rule in the chapter subject verb agreement also and in verbs also. And in the simple past tense there is no rule for s or es. We always use second form of the verb. Okay, I am showing you some verbs. Please look here. Here are three forms of verbs. First is showing present, second column is showing past, and third one is showing past participle. But in this chapter we need only present and past. But we will do past participle also. You will do this in your next chapter. Okay, chapter number 21. This one also. Firstly, open. जब open है हमारे पास, we are adding ed for the past. It will be open and opened. Jump. We will again add ed. Jumped, jumped. Next, and these are called regular verbs. है ना, regular verbs जिनमें ed add हो जाता है. Next, come. And इसका जो word है that will be changed for the past, came, and past participle will be come. Next, go, went, gone. तो these are irregular verbs क्योंकि इनमें जो past और past participle है that become change. Next, cut, cut, cut. ये same है यहाँ पर, it won't be changed, it will remain same. Next, cry. Cry जब हमें लास्ट में y होता है, what do we do? कि जो y होता है हम उसे ड्रॉप करते हैं, we add ied. Okay, it will be cried, cried, cried. Okay, let's do the book of Tra. Yes, come to learn portion time and tense. Read the sentences given below and do as directed. One has been done for you. If some action happened before now, put the number of that sentence in the circle under past on the timeline below.
Next, if some action is happening at the present moment or happens every day, put the number of that sentence in the circle under present. Here past and present is written ऑन द टाइम लाइन, तो उसमें पास्ट और प्रेजेंट में हमें करना क्या है कि जो सेंटेंसेस पास्ट के लिए यूज हुए हैं हमें उसका नंबर पास्ट के अंडर राइट करना है, एंड द सेंटेंसेस विच आर यूज फॉर प्रेजेंट हमें उनका नंबर राइट करना है प्रेजेंट के अंडर. सो हियर द नंबर वन इज वी एट पिज्जा फॉर डिनर येस्टरडे. येस्टरडे, तो येस्टरडे मीन्स द डे विच हैज पास्ट, जो कि डे जा चुका है. तो इट मीन्स ये एक्शन भी पहले हो गया. एट, एट सेकेंड फॉर्म है एट की, तो दिस इज used for past, so we will write it under past. Next, father reads the newspaper. ये रीड्स द न्यूज़पेपर उनकी हैबिट ही है, वो ऑलवेज रीड करते हैं. तो रीड जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस यूज हुआ है, तो दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट इसके लिए हम कहाँ राइट करेंगे, प्रेजेंट के अंडर राइट करेंगे इसको, नंबर टू. नेक्स्ट, वी प्लेड फुटबॉल लास्ट संडे. लास्ट संडे, द संडे विच हैज़ गोन, जो संडे जा चुका है, तो प्लेड हियर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो दिस इज यूज्ड फॉर पास्ट, हम इसे भी पास्ट के अंडर राइट करेंगे, नंबर थ्री. नेक्स्ट, द कैट ड्रैंक अप ऑल द मिल्क येस्टरडे. अगेन येस्टरडे इज देयर, द डे हैज ऑलरेडी गॉन. तो ड्रैंक इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. First form of the verb is drink and second is drank. We will write it under past, number 4. Next, Kavita practices the sitar every day. वो डेली प्रैक्टिस करती है उसकी, है ना. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्रैक्टिस, तो उसके साथ एस यूज हुआ है, इट हैज बिकम प्रैक्टिसेस. तो दिस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट, वी विल राइट इट अंडर प्रेजेंट. नेक्स्ट, द स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश एवरी डे, हर रोज वो स्टडी करते हैं इंग्लिश. स्टडी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर ये हमें क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट शो कर रहा है. वी विल राइट इट अंडर प्रेजेंट. Next, now read these sentences. Yesterday I walked across the fields. I walk across the fields every day. Just see, in the first sentence walked is written and in the second sentence walk is written. And इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में yesterday यूज हुआ है, मीन्स कि वो ऑलरेडी हो चुका वर्क है ना, वो हो गया, पहले हुआ है. एंड आई वॉक अक्रॉस द फील्ड्स एवरी डे, ये होता है, बार बार होता है, एवरी डे, डेली. You will notice that the form of the verb walk changes in these sentences. जो verb है walk वो change हो जाती है. The verb walk not only expresses an action, ये सिर्फ action को express नहीं कर रही है, but it also tells the time of action. ये एक्शन का टाइम भी बता रही है. मीन्स जब येस्टरडे फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ तो ये कहाँ था, एक्शन पास्ट में था, और जब सेकेंड सेंटेंस में यूज हो रहा है इट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट. तो द वर्ब इज ऑल्सो टेलिंग अस द एक्शन ऑल्सो. द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस व्हेन द एक्शन हैपन्स. जो एक मतलब टेंस होता है वो हमें ये बताते कि एक्शन कब हुआ, कब होता है, कब होगा, एवरीथिंग जो भी होती है हमें टेंस से पता चलती है. एंड वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस नाउ. अभी जो हम इस चैप्टर में करेंगे वी विल डू ओनली टू टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट. Okay, simple present and simple past. First, simple present tense. Read these sentences. He comes to school by bus. Regular कर रहा है वो वर्क, ये रेगुलर हो रहा है उसका ये एक्शन. नेक्स्ट, शी लाइक्स आइसक्रीम. जानकी डांसेस ग्रेसफुली, तो ये भी उसका रेगुलर एक्शन है जानकी का. नाउ in these sentences the verb tells us whether an action happens regularly or talks about people in general. या तो एक्शन जो है वो रेगुलरली होता है या फिर जनरल ही लोगों के बारे में बात हो रही है. तो दीज वर्ब्स आर सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू शो दैट एन एक्शन हैपन्स रेगुलरली. हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं जब भी कोई एक्शन रेगुलरली होता है. और ऑफन वी यूज वर्ड्स लाइक, इसमें कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि ऑलवेज, यूजली, समटाइम्स, जनरली, ऑफन, एवरीडे टू स्पीक अबाउट सच एक्शंस. मतलब जब भी ये वर्ड आएंगे हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, नेहा ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली. नेहा ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली. अब यहाँ हम चेक करेंगे स्पीक्स, इट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पर हमने इसके साथ एस यूज किए, है ना. ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी किया था कि हम कहाँ एस और ई एस यूज करते हैं. whenever he, she, it, नेम ऑफ वन पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करते हैं. नेक्स्ट, आई ऑफन हेल्प माई मदर टू मेक ब्रेकफास्ट.
अब ओफन वर्ड है यहाँ पर, फर्स्ट सेंटेंस में ऑलवेज था, यहाँ ओफन है, तो हम यूज कर रहे हैं वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट, आई टेक माई पैथ फॉर अ वॉक एवरी डे. एवरी डे वर्ड है तो उसके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट जनरली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स और फैक्ट्स. कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसे ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो ये एक ट्रुथ है, सन जो है वो हमेशा ईस्ट में राइज होता है. और ये भी हो सकता है द सन सेट्स इन द वेस्ट. नेक्स्ट, मंकीज लव बनानास. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. एवरीवन नोज कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये भी एक ट्रुथ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. नेक्स्ट, वर्ब फॉर्म्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. We use a simple form of the verb with the pronoun. जब भी pronouns होते हैं, जैसे कि I, we, you, they, तब हम क्या यूज करते हैं, वर्ब जो होती है उसकी सिंपल फॉर्म यूज करते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, एज इट इज वर्ब को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग वेल, जो इसकी वर्ब है, बेसिक वर्ब जो है वो सिंग ही है, हमने कोई चेंज नहीं किया है इसके साथ. एज आई हैव रिटन इट एज सिंग. आई सिंग वेल. We play in the park. You help Danish with his homework. They run very fast. तो इन 4 sentences में जो verb यूज हुई है वो बेसिक verb यूज हुई है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. नेक्स्ट, we use the s form of the verb with singular nouns. The pronouns he, she and it. जब भी सिंगुलर नाउन होता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि जब भी सिंगुलर नाउन होगा, जैसे कि लाइक चाइल्ड, बेबी, डॉक्टर, या वन पर्सन का नेम होगा, और अगर प्रोनाउन होंगे ही, शी या इट होगा, और इन केस ऑफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तो भी मैंने बताया आपको. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स वेरी वेल, तब हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ एस की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एस वाला है. शी सिंग्स वेरी वेल. बीना रन्स एवरी मॉर्निंग. द टोटोइज मूव्स वेरी स्लोली. तो टोटोइज यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने मूव्स यूज किया, जो बेसिक वर्ब है वो है मूव, हमने एस यूज किया इसके साथ. नेक्स्ट, वर्ब्स एंडिंग विद, जिन वर्ब के एंड में सी एच, एस एच, एक्स या फिर ओ होता है, यूजली टेक एन ई एस when used with singular nouns. जब भी वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज की जाती हैं, या प्रोनाउन ही, शी, इट के साथ, तो वहां पर उनके साथ क्या यूज होता है, ई एस यूज हो जाता है, जिन वर्ब के एंड में सी एच, एस एच, एक्स या फिर ओ होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर रीचेज हिज ऑफिस अर्ली. तो इसकी जो मेन बेसिक वर्ब है वो रीच है, तो ये इसके एंड में सी एच था, तो हमने इसके साथ ऐड कर दिया ई एस, इट हैज बिकम रिचेस. नेक्स्ट, ही ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे. तो जो वर्ब है वो ब्रश है, इसके एंड में एस एच है, हमने ई एस ऐड कर दिया इसके साथ, इट हैज़ बिकम ब्रशेस. तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है, एज आई हैव टोल्ड यू कि जब भी प्रोनाउन होगा ही, शी, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे उसके साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट में. अब आप कहोगे कि माय फादर था, तो माय था मैम, वहाँ पर प्रोनाउन, तो हमने एस लगा दिया, ई एस लगा दिया वर्ब के साथ. नो, हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेक करेंगे. फादर, फादर सिंगुलर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी उसके साथ ई एस यूज़ होगा, एस या ई एस यूज़ होगा. हमारे पास रीच है तो ई एस यूज़ होगा उसके साथ. नेक्स्ट, थर्ड वन इज शी वॉशेज द क्लॉथ्स इन द इवनिंग. यहाँ पर जो वर्ब है हमारे पास वॉश, इसके एंड में एस एच है, सो वी विल एड ई एस विद इट, इट विल बिकम washes. नेक्स्ट, फॉर वर्ब्स एंडिंग विद वाई, जो वर्ब्स वाई से एंड होती है उनमें हम क्या करते हैं, वाई को ड्रॉप कर देते हैं और आई ऐड करते हैं वाई के प्लेस पर, और ई एस हो जाता है उसके साथ, ऐड हो जाता है. वेन वी यूज दैम विद द प्रोनाउंस ही, शी, इट, जब भी ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं या सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज ट्राइज हार्ड. वर्ब जो है वो ट्राई है, अब ट्राई में हमने वाई को ड्रॉप कर दिया, उसके प्लेस पर आई ऐड किया, वाई के प्लेस पे हमने आई ऐड किया और ई एस ऐड कर दिया साथ में, इट हैज बिकम ट्राइज. तो शी के साथ हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, उसके साथ हमें एस या ई एस ऐड करना था, बट हमारे पास ट्राई था, तो ट्राई में हमने क्या किया, वाई को कट करके आई एस यूज कर दिया, इट हैज बिकम ट्राइज. नेक्स्ट, अ पोर्टर डैश हैवी, सॉरी, कैरीज हैवी लोड्स. जो वर्ब है वो कैरी है, तो कैरी में वाई हैंड में, तो हमने उसको कैरीज कर दिया. अ पोर्टर, पोर्टर जो है वो सिंगुलर है. नेक्स्ट, माई लिटिल ब्रदर क्राइज अ लोट. वर्ब जो है वो क्राई है,
और हमने वाई को कट किया, वाई को ड्रॉप किया, आई एस यूज़ कर लिया उसके साथ। तो यहाँ पर लिटिल ब्रदर है जो वो सिंगुलर है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड अ वर्ब विद एस और ई एस। तो यहाँ पर हम एस ई एस ऐड नहीं कर सकते थे बिकॉज वाई था वर्ब के एंड में, तो हमें आई ई एस यूज़ करना हुआ इसके साथ। नेक्स्ट, come to this green portion. For some verbs that end in y but have a vowel before them, we add an s when we use them with he, she, it and singular nouns. For example, he stays with his aunt. अभी जैसे हमने किया ट्राई है ना, तो ट्राई में हमने वाई ड्रॉप किया, आई ई एस ऐड कर दिया, बट यहाँ पर ये कंडीशन है कि जब भी कोई भी वर्ब जो है वाई से एंड हो रही है लेकिन उससे पहले वोवल है, तो हम क्या करेंगे, एंड में एस ही ऐड करेंगे, आई एस यूज़ नहीं होगा जब भी हम उसे ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टेज विद हिज आंट, तो स्टेज जो है, जो बेसिक वर्ब है वो स्टे है, तो वाई से पहले यहाँ पर वोवल है, तो हम क्या ऐड करेंगे, लास्ट में एस ऐड करेंगे ओनली। नेक्स्ट, अ बेबी इंजॉयज म्यूजिक, तो इंजॉय में हम चेक करेंगे जो बेसिक वर्ब इंजॉय, इंजॉय में क्या है, उससे वाई से पहले वोवल है, तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। Okay, now come to A exercise. Now complete these sentences with the correct present form, the tense form of the verbs in the brackets. First is the elephant dash its trunk to pick up things. Elephant is singular और यहाँ पर मतलब always ही करता है ना elephant, तो जब भी use करेगा अपने trunk को तो हम क्या write करेंगे, uses. Second, the boat dash people to that Iceland. Boat is singular है ना, तो boat करती है ना, इसमें कुछ past का दे नहीं रखा, तो we will write ferry है, तो y drop करेंगे, it will become ferries. Cats dash birth to many kittens at a time. तो यहाँ पर हम cats के साथ क्या यूज़ करेंगे, cats plural है, तो we will write give. Now come to B exercise. Use each subject and verb in the table to make a sentence in the simple present tense. In the table, subject and verb is given. Just tick one subject and one verb and make a simple present tense. First is already done. The dog barks at strangers. Second, my mother goes to temple daily. And rest of the sentences number 3, 4, 5, 6 you will make yourself. Okay. Now C exercise. Let us do a quick revision with the help of this table. The first one has been done for you. In the first column, pronouns are given. Second, simple form of the verb is given, and in the third column, verb form in the present tense. फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है हमें आई वो यू दे, तो उसके साथ हम जो वर्ब है, सिंपल फॉर्म जो है वर्ब की जो बेसिक होती है वो है सिंग एंड वर्ब, और हम जब यूज़ करेंगे इसे आई वो यू दे के साथ, तो क्या यूज़ होगी, एज इट इज़ यूज़ होगी ये, तो सिंग एंड वर्क, आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, दे सिंग, आई वर्क, यू वर्क, दे वर्क, वी वर्क। नेक्स्ट, ही शी इट, हमें इसके साथ वर्ब को यूज़ करना है, सिंग एंड वर्क को यूज़ करना है, तो जब भी ही शी इट के साथ वर्ब यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ द रूल कि हमें एस या ई एस यूज़ करना है, देन व्हाट विल वी डू, सिंग्स वॉक्स, इट विल बी सिंग्स वॉक्स, he sings, she sings, it sings, he works, she works, it works. Next, number 3, he, she, it. तो इसके साथ हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो है मेक अराइव। ही शी इट के साथ हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो क्या रूल फॉलो करेंगे, एस या ई एस का, सिंपल प्रेजेंट के लिए, सो वी विल जस्ट राइट मेक्स अराइव्स। नेक्स्ट अगेन ही शी इट, तो ही शी इट के साथ हमें वर्ब यूज़ करनी है स्टडी फ्लाई, तो स्टडी में वाई हैंड में है ना, जैसे कि ही शी इट के साथ हमें एस या ई एस यूज़ करना है, बट वाई हैंड में तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉप वाई और आई ई एस यूज़ हो जाएगा, स्टडीज। नेक्स्ट फ्लाइज, ही शी इट वर्ब्स आर फिक्स पुश, और क्या हो जाएंगे इसके साथ, फिक्सेस पुशेस। नंबर 6, ही शी इट है प्रोनाउंस, अब वर्ब जो हमें दी हुई है वो है प्ले और प्रे, तो जब भी हम ही शी इट के साथ यूज़ करते हैं, एज वी आर ऑलरेडी डूइंग, एस या ई एस यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, प्लेज एंड प्रेज। नाउ सिंपल पास्ट टेंस, पहले हमने किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ सिंपल पास्ट टेंस। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली, व्हाट इज कॉमन टू द हाईलाइटेड वर्ब्स। हाईलाइटेड वर्ब्स में कॉमन क्या है, हमें वो चेक करना है, हिंट जो है हमें दी हुई है, व्हेन डिड दीज एक्शंस हैपन, कि ये एक्शन कब हुए। फर्स्ट, आई वॉक टू स्कूल येस्टरडे, कल स्कूल गया। दे प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक फुटबॉल खेली, जो वीक जा चुका है। द माई ब्रदर एंड सिस्टर वॉच्ड अ फिल्म लास्ट नाइट, कल
रात को फिल्म देखी, यानी कि वो रात भी चली गई. द वर्ब्स इन these sentences tell us that the actions happened sometimes before now. कि जो एक्शन है अभी वाला जो टाइम है उससे पहले हुआ है, जो कि पास्ट में हुआ है. लाइक वोक्ड, प्लेड, वॉच्ड, ये हाईलाइटेड है. दीज आर शोइंग द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कि अभी नहीं हुआ, अब से थोड़ी देर पहले हुआ है. Verbs that tell us about actions that happened in the past are in the simple past tense. जो वर्ब्स हमें ये बताते कि एक्शंस पहले हुआ है ना, पास्ट में हुआ है, तो वो कौन से टेंस होते हैं? सिंपल पास्ट टेंस होते हैं. वर्ब फॉर्म्स इन द सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब को कैसे यूज करते हैं? लेट्स चेक देम. हियर आर सम ऑफ द वेज, कुछ वेज हैं इन विच वी चेंज वर्ब्स इनटू सिंपल पास्ट टेंस. वी यूजली ऐड ईडी. आपने पहले भी चेक की होंगी ऐसी वर्ब्स की जिनके एंड में ईडी आता है. तो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में क्या आता है? ईडी होता है जब भी हम उसे पास्ट के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी ओपन द डोर फॉर द गेस्ट, दे लाफ्ड एट हिज जॉक्स, द किटन लुक्ड अराउंड फॉर इट्स मदर. तो यहाँ पर जो ओपन, लाफ्ड, लुक्ड है, तो जो इसकी मेन वर्ब है, बेसिक वर्ब है, वो है ओपन, लाफ और लुक. इसके साथ ईडी ऐड हुआ तो दैट हैज बिकम पास्ट. नेक्स्ट, फॉर वर्ब्स दैट एंड इन ई, जिन वर्ब्स के एंड में ई होता है तो उनके साथ हम यूजली ऐड करते हैं डी ओनली. फॉर एग्जाम्पल, दे क्लोज्ड द गेट एट 10 p.m. वर्ब जो है वो क्लोज है तो उसके साथ डी ऐड हुआ है. वी लिव्ड इन दैट हाउस 10 years ago, जो वर्ब है वो लिव है, इसके साथ डी ऐड हुआ है. नेक्स्ट, पीपल क्यूड आउटसाइड द कंट्रीज. तो क्यू वर्ब जो है वो क्यू है, इसके साथ डी ऐड हुआ है, इट हैज बिकम क्यूड. For verbs with a single syllable, we have to double the last letter and add ed. For example, the thief grabbed her bag. Verb grab, जो verb है grab, single syllable, जो एक ही टाइम में बोली जाती है, grab. तो इसमें जो हम लास्ट लेटर होगा वो क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, इट विल बी grabbed. डबल बी हो जाएगा. नेक्स्ट, शी स्लैम्ड द डोर, जो वर्ब है स्लैम, तो स्लैम का जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाएगा. द टीचर पिंट द हाउस, सॉरी पिंट द नोटिस ऑन द बोर्ड, तो वर्ब जो है वो पिन, तो जो इसका लास्ट लेटर है एन, दैट विल बी डबल, पिंट. नेक्स्ट, फॉर द वर्ब्स दैट एंड इन वाई, वी चेंज द वाई टू आई एंड एड ईडी. जब वाई होगा एंड में जिन वर्ब्स के, हम क्या करेंगे? वाई ड्रॉप करेंगे, आई ऐड करेंगे एंड ईडी. ओके, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था, वाई कट करके, वाई ड्रॉप करके हमने आई यूज़ किया था और ई एस ऐड कर दिया था. फॉर द पास्ट हम क्या करेंगे? सेम, वाई को ड्रॉप करके तो हमें दोनों कंडीशन में आई ही ऐड करना है. ओके, सिंपल प्रेजेंट के लिए ई एस हो जाएगा और पास्ट के लिए ई डी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द पोर्टर कैरिड द हैवी लोड ऑन हिज शोल्डर्स, जो वर्ब है वो है कैरी, तो कैरी में एंड में वाई है, वी विल ड्रॉप वाई और आई ई डी ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट, माई लिटिल ब्रदर क्राइड अ लोट, वर्ब क्राई है, वाई फिर से वही रूल, वाई को हम ड्रॉप करेंगे, आई डी यूज कर देंगे. शी ट्राइड हार्ड टू गेट द जॉब, वर्ब जो ट्राई है, अगेन वी विल जस्ट ड्रॉप वाई एंड ऐड आई ई डी. सम वर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल्स, कोई मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं करती हैं. दे चेंज कम्प्लीटली व्हेन यूज्ड इन द पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस में कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर bought groceries from this store, तो जो वर्ब है वो है buy, तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है bought. नेक्स्ट, द फार्मर kept the kitchen in the coop, वर्ब जो है keep, तो जब ये पास्ट में यूज होगी इट विल बी kept हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट, आई वेंट विद हर टू द म्यूजियम, वर्ब जो है go, वो चेंज होकर क्या हो जाएगी? went. Next, a few verbs do not change their forms at all when used in the past tense. कुछ ऐसी verbs होती हैं जो कि change ही नहीं होती है, they remain same whether they are in present or in the past. For example, the fisherman cast his net in the sea. The verb is cast. जो जब present में use होगी तब भी cast and past में भी cast. Next, his dress cost a 1,000 rupees. Cost, जो इसकी सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म है, वो भी कोस्ट ही है. आई पुट द क्लोथ्स इन द कपबोर्ड, पुट रिमेन सेम इन प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ. एंड नेक्स्ट, ही हर्ट हिज लेग. नाउ प्रैक्टिस प्लेस दीज वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस इन द करेक्ट कॉलम्स. आपको क्या करना है? इन वर्ब्स को करेक्ट कॉलम्स में राइट करना है. कॉलम्स दिए हुए हैं हमें 4.
तो वर्ब वो वाली चूज करनी है जिनके साथ ईडी है फर्स्ट कॉलम में, वर्ब प्लस ईडी। नेक्स्ट वो वर्ब है जिनके साथ ओनली डी ऐड हुआ है। एंड थर्ड वो वर्ब है जिनमें जो लास्ट लेटर है वो डबल हुआ है और ईडी यूज हुआ है। एंड एट द एंड वो वर्ब है जिनमें आई ई डी यूज है, मीन्स जिनके एंड में वाई होता है, हम वाई को ड्रॉप करके आई ई डी यूज करते हैं। तो वर्ब जो है प्लस ई डी यूज हुई है वो है जम्प्ड, रश्ड, वॉक्ड, हिस्ट। और वर्ब जो सिर्फ डी के साथ यूज हुई है वो है टाइड, रेस्ड, टिकल्ड, एग्रीड, चेस्ड। वर्ब जब डबल लेटर होके उसके साथ ईडी यूज हुआ है दैट इज होप्ड, फैंड, वैग्ड, स्किप्ड, रिप्ड, नॉडेड। और वर्ब जब आईईडी के साथ यूज हुई है वो है हरिड। नेक्स्ट टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट इज वी सेल्ड और सोल्ड आवर कार। जो वर्ब होती है वो सेल होती है, बट जो इसकी सेकंड होगी फॉर्म वो होगी सोल्ड। तो सोल्ड इज द राइट आंसर। सेकंड, आई हर्ड और हर्ड अ नॉइस। तो हियर की जो सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, एच ई ए आर डी। थर्ड, द मैन लोस्ट और लोज्ड हिज वे। तो ये होगी लोस्ट। नेक्स्ट फोर्थ, ही मेट और मीटेड हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड। मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है मेट, सो मेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, चूज द करेक्ट वर्ब। फर्स्ट इज आई बाय, बोट और बाइज दीज शूज येस्टरडे। अब यहाँ येस्टरडे है तो इट मीन्स कि जो एक्शन है वो पहले हुआ है ना, अभी नहीं हुआ, अब से थोड़ी देर पहले हुआ होगा, तो इसके लिए सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर कौन सी है, बोट। दे कोस्ट, कोस्ट चार्ज 500 रुपीज। तो यहाँ पर दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, कोस्ट तो यूज कर नहीं सकते है ना, हम यूज करेंगे ओनली कोस्ट विदाउट एस, क्योंकि दे है वो प्लूरल है। नेक्स्ट, शीना ऑलवेज कैरी, कैरीज, कैरिड हर वाटर बॉटल व्हेन शी गोज आउट। तो ये उसकी हैबिट है, ऑलवेज भी यूज हुआ है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी ऑलवेज होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस से आई एस। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो है ना, या नेम होगा किसी का, तो शीना है तो वो वन पर्सन का नेम है, तो क्या होगा यूज, कैरीज। नंबर थ्री, समटाइम्स शी गोज वेंट स्विमिंग इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, शाम को वो कभी कभी जाती है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी है यहाँ पर। तो पास्ट का तो कोई इंडिकेशन नहीं दिया हमें, येस्टरडे नहीं है, लास्ट वीक, लास्ट इवनिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो क्या यूज़ होगा इसके साथ, शी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द वर्ब विद एस और ई एस, गोज। और वैसे भी ये रेगुलर एक्शन है उसका, कभी होता है कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं तो उसमें रेगुलरिटी है। फोर्थ, विनीता केम होम एंड कीप्स केप्ट हर पर्स ऑन द टेबल। तो यहाँ से हमें क्लियर और केम होम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, तो इट मीन्स ये पास्ट का एक्शन है। तो अगर पास्ट में वो घर आई है थोड़ी देर पहले, तो उसने तब भी रखा होगा ना पर्स, तो इसके लिए हम सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, केप्ट। फिफ्थ, एवरी नाइट आई वेक अप एंड हियर हर्ड दैट फनी नॉइज। एवरी नाइट यानी कि हर नाइट की बात हो रही है, ये रेगुलर एक्शन है। तो रेगुलर एक्शन के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई विल राइट हियर। नेक्स्ट, शी ब्रिंग्स ब्रोट हर न्यू बुक टू स्कूल एंड मिसप्लेस्ड इट। तो मिसप्लेस हो गई उसकी, वो एक्शन हो चुका, तो इट मीन्स कि वो स्कूल में पहले ही लाई होगी। We will write here brought. Next exercise G, fill in the blanks with the correct form of the verbs in the box. आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, ऑप्शन बॉक्स है, तो आप उसमें से करेक्ट फॉर्म जो वर्ब है वो चूज कर सकते हैं। देन उसकी भी हमें करेक्ट फॉर्म राइट करनी है, वो हमें देखनी होगी। फर्स्ट, शी डैश हर हैंड वाइल आयरनिंग। तो जो वर्ब है वो इसके लिए यूज होगी बर्न, यानी कि मतलब जल जाना, बर्न जल जाना। तो मतलब आयरनिंग के टाइम उसका जो हैंड है वो बर्न हो गया, पहले ही हो गया ना, अभी तो नहीं हुआ ना। तो ये तो नहीं कि वो रेगुलरली बर्न करती है, ऑलरेडी पहले हो गया ना, थोड़ी देर पहले हो गया, तो क्या यूज करेंगे, बर्न्ड। ही लुक्ड अराउंड एवरीवेयर बट कुड नॉट डैश द पपी। लुक्ड अराउंड, उसने सब जगह देखा, लुक्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर भी नेक्स्ट में भी सेकंड। कुड नॉट डैश द पपी, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कुड है ना, तो कुड जो होता है उसके साथ रूल होता है, कैन कुड जो होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फाइंड। जब भी कैन कुड मे माइट विल शेल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, हमें यहाँ ये चेक करना होगा, कुड नॉट फाइंड द पपी। थर्ड, द चाइल्ड डैश हिज टॉय इन द फेयर एंड स्टार्टेड क्राइंग। अब चाइल्ड ने अपने टॉय को क्या किया और रोने लग गया है ना, तो यहाँ पर
ऑलरेडी हुआ, जो भी हुआ पहले हुआ ना, अभी तो नहीं हो रहा ना प्रेजेंट में. लोस्ट, उसका जो टॉय था वो लोस्ट हो गया. द मैन डैश विद द पुलिसमैन, आर्ग्यूड. Okay, next rest of the exercise you will do yourself. Now exercise H, rewrite this story after changing the highlighted verbs into the past tense. आपको इस स्टोरी को रीराइट करना है, और यू कैन राइट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस in the book also. Yes, Little Red Riding Hood is the story of a brave girl. One day, Little Red Riding Hood's mother gives her a lonely lemon pie to take to her grandmother. तो यहाँ पर जो gives है, highlighted words है, हमें सिर्फ उसी को ही चेंज करना है. तो gives है, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट के लिए हम यूज करेंगे gave. Her grandmother lives alone in a cottage in the middle of the forest. Lives, तो ये प्रेजेंट का है लिव्स, तो जो बेसिक वर्ब है वो लिव है, तो यहाँ पर लिव्स यूज हुई है, ग्रैंड मदर के साथ ऐसे यूज हुआ है, तो इसको पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, लिव्ड. व्हेन रेड राइडिंग हुड रीचेस द कॉटेज, तो रीचेस ये यहाँ पर प्रेजेंट शो कर रहा है, फॉर द पास्ट वी विल राइट रीच्ड. फाउंड, शी फाइंड्स द डोर ओपन, फाइंड्स द डोर ओपन, फाइंड्स, अब जो फाइंड वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगी, फाउंड. She knocks at the door and cries, "Grandma, may I come in?" Knocks, जो knock verb है उसका क्या हो जाएगा, knocked at the door. And cries, cries का क्या हो जाएगा, cried. ओके, क्राई है तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर CRY होगा, तो Y को हमें कट करना होगा, Y को ड्रॉप करके IED ऐड करेंगे. फॉर द पास्ट इट विल बी क्राइड. नाउ द टेंस ऑफ द वर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन हैपन्स. जो टेंस होता है वर्ब, टेंस ऑफ अ वर्ब, जो भी मतलब वर्ब होगी, जो टेंस होगा वो हमें क्या बताएगा कि एक्शन कब हुआ, हो रहा है, तो वो हमें एक प्रॉपरली सब बताएगा. The simple present tense is used for an action that is done regularly and for expressing facts. Simple present tense जो होता है वो यूज होता है कि जो एक्शन रेगुलर होते हैं और जो फैक्ट्स एक्सप्रेस करते हैं, ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज डन इन द पास्ट, और जो एक्शन पास्ट में हो गया है वो क्या बताएगा हमें, उसके लिए क्या यूज होगा, सिंपल पास्ट tense. I hope you have understood this chapter, but you will have to do the practice of the book work so that you can do it very properly. Okay, thank you.